Good morning, students. Welcome. Today we are going to start 2.1 Invictus. Okay, this is a poem. Warming up questions are given. See here, think and respond with yes or no. When you are faced with very serious problems or some grave danger, what do you experience? This is the warming up questions. There is a match the following also. Guess what the following symbolize and match the pairs. You can go through all these things. Let's start with the poem. Invictus, out of the night that covers me, black as a pit for pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced, not cried aloud, under the blood-going of chance, my head is bloody but unbowed. Behind this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years find and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with the punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. By William Ernest Henley. Okay, this is a poem written by the poet William Ernest Henley. What is tried to say in this poem about his we can't say it as a fear. The problems he is facing, something has happened, some ill thing is suffering, and that he is facing that problems, but he is not afraid of that and lost his courage. तो अपना courage उसने lose नहीं किया है. That is telling us in this poem. Out of the night that covers me, black as a pit for pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. What the poet is saying in the first stanza, out of the night that covers me. Out of the night means whatever the difficulty, whatever the darkness around me, यानी मेरे बाजू में कितने इर्द गिर्द कितने ही अंधेरा क्यों ना हो ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव हो, कितने ही तकलीफ़ें क्यों ना झेलने पड़े, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल. पर मैं एक गॉड को थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें हैं मेरी ज़िंदगी में, इतनी सारे अंधेरिया मेरे ज़िंदगी में छाए हुए हैं. मैं इसके बावजूद भी आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, ऑफ डाइंग और समथिंग. यानी इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, जिसकी वजह से लोग क्या होता है, बहुत ये हो जाते हैं. अगर कोई बीमारी हो तो इंसान हताश हो जाते हैं, उनको जीने की चाहत नहीं रहती है, वो अपने गिव अप कर देते लाइफ में. But he is of not that type. He is facing all the problems with his head over. सर उठा के अपने सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस करे बिना कोई घबराहट, बिना कोई डर. इसके लिए वो बोल रहे अपने भगवान को थैंक्स बोल रहे क्योंकि उनको इतना अच्छा सोल मिला है कि वो किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे. वो फेस कर रहे अपने प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को, अपने दर्द को झेल रहे. इसके बावजूद भी कोई शिकायत वो नहीं कर रहे. सो इज सेइंग इन दैट अनकॉन्करेबल सोल. उसके अंदर की जो सोल है, इंसान का सोल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनकी चाहत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. देन दे कैन फेस द थिंग्स और प्रॉब्लम्स विदाउट afraid anything. Out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstances, I have not winced, not cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is blooded but unbowed. What is saying in the second stanza, in the flesh clutch, मतलब कितने ही विकेट ट्रैप, कितने ही जो मेरे बाजू में इर्द गिर्द जो जाल है, कितने ही मजबूत क्यों ना हो. मीन्स circumstances he is talking about, the situation, how much difficult or whatever the trap has been there around him,
in that situation also I have not means not cried aloud. मैं बिल्कुल डरा नहीं, मैं दर्द के मारे बिल्कुल रोया नहीं, ना कराया, कुछ नहीं किया. I was facing it bravely. Under the blood-getting of chance, my head is bloody but unbowed. ब्लड गनिंग्स का मतलब है वायलेंट बीटिंग विद अ क्लब. मतलब इसको कितने ही दर्द झेलने पड़े, कितने ही दुख उसके पास आए. माई हेड इज ब्लडी, मेरा सर भले खून से लथपथ क्यों ना हो पर मैं नहीं झुकूंगा. यस हर्टेड, इज हर्टेड टोटली, वो अंदर डीपली बहुत उसको फील हो रहा है, उसके दर्द, उनके दर्द सब वो झेल रहा है. मतलब भले ही कितना ही मेरे शरीर से, मेरे सर से खून निकले, आई वोंट बो माई हेड, आई विल फेस इट ब्रेवली. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and head the menace of the years finds and shall find me unafraid. Beyond the place of the wrath means anger. Okay, कितने मतलब in this world we face many hangers, we have to face many hangers, we have to face many sadness throughout the लाइफ लॉन्ग. हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दर्द, बहुत लोगों के गुस्से झेलने पड़ते हैं. हर एक चीज़ को हमें यू हैव टू फेस इट दिस प्रॉब्लम्स. लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड्स एंड हेड द मेनेंस ऑफ द ईयर्स फाइंड एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड. भले ही कितने ही ये हो, प्रॉब्लम्स कितने हो, what are the face I must be facing, what are the problems I might be facing, I am fit enough and I am not at all afraid of anything, and I stand strong over in front of all the problems. वो कितने भी दुख दर्द तकलीफ़ें क्यों ना है, कितने गुस्से बड़ा लोग के बीच में हमें झेलना पड़ता है, कितनी सैडनेस हम देखते हैं इर्द गिर्द, इसके बावजूद भी आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आई विल फेस इट ब्रेवली. दैट्स व्हाट इज सेइंग इन द third stanza. It matters and how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. So it matters not how straight the gate. Okay. वो saying means कितने ही नैरो गेट क्यों ना हो, मतलब कितनी तकलीफ़ें क्यों ना हो, जितनी जीने के लिए मेरे लिए वक्त भले कम कितना हो, वॉट एवर, आउट चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल. कितनी ही हाउ मच पनिशमेंट इफ़ इज़ गेटिंग, कितनी भी पनिशमेंट उसको क्यों ना मिल रहे, वो मैं झेल क्यों ना रहे, इसके बावजूद भी आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपना भाग्य का खुद विधाता हूँ. आई एम द मास्टर ऑफ द फेथ, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. मेरे फेथ, मेरा भविष्य, मेरा भाग्य और मेरा सोल क्या है, उसका मैं हॉनर हूँ, वो सब मेरे कब्ज़े में है, मेरे अंदर है. तो जब तक मेरे इरादे मजबूत है, ये सब चीज़ें मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती या मेरे मन को हिला नहीं सकती. आई विल बी फेसिंग इट ब्रेवली एंड करेजली. दैट इज़ व्हाट इज सेइंग. एक्चुअली ये द पोएट, we are talking of the William Ernest Henley. He suffered from a tuberculosis infection. टीबी का एक इन्फेक्शन उनको हुआ था. दैट वाज द रिजल्ट. क्या हुआ उनकी वजह से, क्या हुआ, उनके पैरों को, घुटने से नीचे जो पैर ये थे, इससे थे, वो वी कैन से दैट इज बिकम्स, ये इसमें बेजान से हो गए. इट वॉज ऑफ नो यूज़. स्टिल ही वॉज, इस सब इसको देख के भी वो हर एक चीज़ को मुस्कुराते हुए सामने जा रहे थे, हर एक तकलीफ़ों को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे. सो ही हैज़ रिटन दिस पोएम आफ्टर दैट इंसिडेंस. ही हैज़ रिटन दिस पोएम जब उनको ट्यूबरकुलोसिस का अटैक आया, उनका पैरों में इन्फेक्शन हो गया एंड इस लेग्स वे हैज ऑफ नो यूज़. घुटने से नीचे का जो हिस्सा है उसका ये भी मतलब ये नहीं रहा, यूज़ ना रहा होने की वजह से, उसके बावजूद जो ये उनके अंदर एक जो स्ट्रेंथ था, उससे वो उस वक्त उस ऐसे हालत में उन्होंने ये कविता लिखी थी, जिससे वो दिखा रहे, लोगों को प्रेरित कर रहे कि भले ही कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो ज़िंदगी में,
आप एक ज़िंदगी के ऐसे मकाम पे हो जहाँ पे आपका ज़िंदा रहना शायद ही इम्पॉसिबल हो, बट इफ़ यू कीप यू अप यू काम, आप काम रहोगे, शांत रहोगे, अपने आप को अपने ऊपर आपका काबू रहेगा, देन यू विल एबल टू फेस दिस प्रॉब्लम। और ये सब चीज़ें आपको हिला नहीं सकती। कुछ भी, जितने भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, ना तो आपको रुला सकती है ना ही हिला सकती है अपने इसको, आपके इनर सोल को। दैट इज़ व्हाट ही इज़ एक्सप्लेनिंग इन दिस पोएम। तो इट एनकरेजेस दैट पीपल who are facing many problems, might be their illness या anything other problem. If you keep courage in yourself, if you are fit and brave enough, you will face all that problems with bravely and all. आप उसको मात दे सकते हो, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा ये सब चीज़ें, and you can lead your life as easy as others do. So this is what it is mentioned in this poem. Keep hopes that everything will be good in the end of your life, and hoping that best in your life. Keep on going easily and calmly with brave and courageous mind. Okay. But I hope you got it, this lesson, this poem. Bye. See you in the next lecture.